On this fateful day, I happened to go up a small graceful hill called Chamundi Hill and never came down. I went up as a very smart person, but I went up this little hill, that person just vanished like a bubble that was burst and just became a part of this magnificent phenomena that you call as life or creation. What's happened since then is too incredible for anybody to believe. Both within me, what happens I can never articulate. But what is happening around me is nothing short of fairy tale-ish. Adiyogi Divya Darshanam is a profound depiction of Adiyogi's unparalleled contribution to humanity, the science of yoga. आदियोगी दिव्य दर्शनम आदियोगी के जीवन और मानवता के प्रति उनके समर्पण की एक बहुत ही गहन प्रतीक है। आदियोगी दिव्य दर्शनम में आदियोगी के जीवन की कुछ प्रमुख घटनाओं को प्रदर्शित किया गया है। ये सद्गुरु की आवाज में है। सद्गुरु बताते हैं कि कैसे सप्तऋषि उनके पहले सादृश्य बने, फिर पार्वती को अपने अंदर समाहित करके वो अर्धनारी बन गए और उसके बाद कैसे उन्होंने अपने गणों को योग का अनुभव कराया। आइए देखते हैं आदियोगी दिव्य दर्शनम। Over 15,000 years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown.
when his ecstasy allowed him some movement, he danced wildly. When intensity peaked, he became utterly still. People saw that he was experiencing dimensions that no one had ever known or able to fathom. His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. Witnessing an individual human in union with the cosmos, they called him a yogi, as he was the first one, the Adiyogi. When his stillness lasted for years on end, curious onlookers melted away. Only 7 seekers remained, as they could not tear themselves away from him. He transmitted the profound science of yoga in its full depth and dimension. He expounded 112 methods of attainment, offering his disciples access to the deepest innards of creation. In this magnificent state of yoga, many mysteries of the created and the uncreated cascaded upon his unbridled wild hair.
It was a vision of the very core of the cosmos in all its profundity and magnificence, a vision of the unfathomable mysteries of the universe, a most overwhelming vision the sages and Devi Parvati had ever witnessed. Devi Parvati, seeing Adiyogi reveling in ecstatic states, said, "I want to have what you have. Show me the way." Adiyogi absorbed her and made her a part of himself, and hence he is the Ardhanari, the ideal man, where one half of him is woman. Seeing the splendor of this magnificent union, Ghanas, his constant companions, asked, "What about us?" Adiyogi said, "Just drink of me," which drove them into intoxicated raptures. Seven sages, the Saptarishis, took the sacred science of yoga in all its forms to human habitations across the planet, which turned into crucibles of civilization.
spectacular being is not of the past, but the future of humanity. To move humanity from hallucinations of ups and downs to nameless ecstasies of one's interiority. Mahadevaya Namaha, Mahadevaya Namaha, Mahadevaya Namaha. Yoga Yoga Yogeshwaraya, Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya, Kala Kala Kaleshwaraya, Shiva Shiva Sarveshwaraya, Shambho Shambho Mahadevaya. Samsara samudratara naukaitabhyam guru bhaktitabhyam vairagya samrajyadam pujanabhyam namo namah Shri Guru Padukabhyam Kavittvavarashi Nishakarabhyam Daurbhagyadavam Buddhamalikabhyam Durikritanam Ravipatatibhyam Namo Namah Shri Guru Padukabhyam Nataya Yo Shri Patitam Sameyo Kadachit
साम्राज्यद पूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कवित्ववाराशिनिशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावाम्बुधमालिकाभ्यां दूरीकृतानम्रविपत्ततिभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां तथाययो श्रीपतितां समेयु कदाचिदव्याशु दरिद्रवर्या मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नालीकनिकाशपदाहृदाभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नमः जनाभीष्टततिप्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां भैरवा योगेश्वरा महादेवा महेश्वरा भैरवा लिंगेश्वरा महादेवा महेश्वरा भैरवा काल भैरवा काल काल भैरवा महाकाल ಗುರುವಿಗೆ ತನುವನ್ನು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮನವನ್ನು ಗುರುವಿಗೆ ತನುವನ್ನು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮನವನ್ನು ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಧನವ ಕೊಟ್ಟು ನಿಶ್ಚಿಂತನಾಗಿರುವ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಧನವ ಕೊಟ್ಟು
Namaskaram. I said Namaskaram. नमस्कारम। आप लोगों से एक नमस्कारम कहलवाने के लिए मुझे 2 बार नमस्कार कहना पड़ता है। नहीं, मुझे इसकी आदत है। 40 साल हो चुके हैं। 40 साल हो चुके हैं। तो उस दिन जब मैं चामुंडी पर्वत पर गया, किसी खास इरादे से नहीं, बस यूं ही। ये बहुत अच्छी बात है कि आज हम यहाँ वेलिंगगिरी की तलहटी में बैठे हुए हैं। उस दिन से लेकर चामुंडी से लेकर वेलिंगगिरी तक ये एक लंबी यात्रा रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो दिन कल ही हुआ था या परसों ही हुआ था। और क्या मुझे मुझे आपसे उसके परमानंद की बात करनी चाहिए या उसके नतीजों का जो दर्द हुआ उसकी बात करनी चाहिए? हर चीज़ की? अच्छा। हर चीज़ की बात करने में 40 साल लग जाएँगे। तो जब ये जाने बिना कि क्यों, जब मैं अपने भीतर बेनाम परमानंद में फूट पड़ा, मेरे शरीर की हर कोशिका से आनंद टपक रहा था, तो मेरा लॉजिकल माइंड मुझे सिर्फ एक ही बात बता पा रहा था, जो केवल लॉजिकल ही नहीं था, बहुत ज़्यादा शंकालु भी था। वो मुझे ये बता रहा था कि शायद मैं पागल हो रहा हूँ। उस दिन जब मैं ऊपर गया था, मैं एक बहुत ही स्मार्ट यंग मैन था, लेकिन मैंने उसे वहाँ खो दिया। मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि उसे मैंने ही बनाया था और ये आए और उसको कुचल कर चले गए और उन्हें और पूरी तरह से उसका विनाश कर दिया। वो वास्तव में एक बहुत ही स्मार्ट आदमी था। मैंने उसे खो दिया, पूरी तरह से खो दिया। लेकिन मैं पीछे छूटा, जैसा कि मैंने कहा था, बेनाम परमानंद की अवस्था में जो फूट रही थी, मुझसे बह रही थी। जब मैंने उस पे थोड़ा नियंत्रण हासिल किया कि कैसे एक बेवकूफ़ की तरह दिखे बिना उस पर मैं थोड़ा नियंत्रण पा सकूँ, जब मैंने ये बात समझी, तो मुझे एहसास हुआ कि ये बहुत आसान है। अगर मैं बस थोड़ा-सा अंतर पैदा कर दूँ अपने और अपने शारीरिक प्रक्रिया के बीच या मेरे शरीर के बीच, मेरे और मेरी मानसिक प्रक्रिया या अपने मन के बीच, अगर मैं बस एक थोड़ा-सा अंतर ले आऊँ, तो मेरे शरीर की हर कोशिका से परमानंद टपकने लगता है। जब मैंने देखा कि ये इतना आसान है, फिर मैं ये सोच ही नहीं पाया, मैं खुद को ये सोचने से रोक ही नहीं पाया कि कैसे इसे हर किसी के लिए संभव बनाया जाए। क्योंकि मैं आस-पास देखता रहा हूँ, अलग-अलग तरह के लोगों से मिलता रहा हूँ, जीवन के साथ कई तरीकों से प्रयोग करने की कोशिश करता रहा हूँ। तब मैं सिर्फ 25 साल का था, लेकिन मैंने बहुत सफ़र किया था पूरे देश में।
मैं देश के दूर-दराज के इलाकों में जा चुका था, झोपड़ियों में सो चुका था। बहुत ही मज़दूरी करने वाले लोगों के साथ अच्छे घरों में भी सो चुका था। अपने परिवारों के साथ, दोस्तों के साथ और कई अलग-अलग तरह के लोगों के साथ रह चुका था। और चूँकि मैं बहुत गहराई से अपने भीतर थोड़ा डिस्टर्ब था, क्योंकि मैंने दुनिया में बहुत ज़्यादा अन्याय देखा था। मैं जहाँ कहीं भी नज़रें डाली, वहाँ मैंने अन्याय होते देखा। समाज में, आर्थिक व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में, धर्म के क्षेत्र में, यहाँ तक कि परिवार की रचना भी मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ अन्याय है। जब आप अन्याय देखते हैं और जब आप युवा होते हैं, आप गुस्सा हो जाते हैं। तो मैं हर समय गुस्सा रहता था, किसी खास व्यक्ति के प्रति नहीं, बस हमेशा गुस्सा रहता था। तो जब मैंने देखा कि मैं ये दुःख नहीं है, लेकिन गुस्सा भी एक तरह का अप्रिय अनुभव है। जब मैंने इतना ज़्यादा दुःख देखा, मैंने जीवन के साथ प्रयोग किए, मैंने कुछ रातें बिताईं। मेरा ऐसा करना एक खतरनाक चीज़ थी, क्योंकि मेरे पिताजी इंडियन रेलवेज़ में मेडिकल ऑफ़िसर थे। पर चूँकि मैंने ये सुना था कि रेलवे प्लेटफ़ॉर्म में जो जीवन होता है सबसे बुरा होता है, तो मैं देखना चाहता था कि जीवन कितना बुरा हो सकता है। तो मैं जा मैसूर रेलवे स्टेशन के प्लेटफ़ॉर्म में 3 रातों तक सोया और मैंने वास्तव में बहुत ही निचले स्तर का जीवन देखा। मैं इसकी यहाँ पे बात भी नहीं कर सकता, वो इतने निचले स्तर का जीवन था। तो मुझे लगा कि हर जगह अन्याय ही अन्याय है। मैंने एक रिवॉल्यूशन जॉइन करने की कोशिश की। मैंने देखा कि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अन्याय था, तो मैंने उसे छोड़ दिया। और जब मैंने पाया कि अगर आप यहाँ बैठते हैं, शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाओं से अछूते, तो आप परमानंद में हो सकते हैं। तो मुझे लगा कि पूरी दुनिया को इसकी कामना होगी, पूरी दुनिया इसे पाना चाहेगी। मैंने तब बैठकर एक प्लान बनाया। उस समय जो जनसंख्या थी, उसके अनुसार मैंने 2.5 साल का एक एक्शन प्लान बनाया और मैंने सोचा कि मैं 2.5 साल में पूरी दुनिया को परमानंदित कर दूँगा। देखिए मैं कितना असफल रहा हूँ। क्योंकि आप क्योंकि आप भी ऐसे हैं। आपसे एक नमस्कार सुनने के लिए मुझे 2 बार नमस्कारम बोलना पड़ता है। क्योंकि जीवन की सरल सी प्रक्रिया के साथ शामिल होने में ही ज़्यादातर लोगों ने अपने जीवन की मूलभूत उल्लास को ही खो दिया है। प्रक्रिया जीवंतता पे हावी हो गई है। एक बच्चे के रूप में आप कैसे थे? मैं आपके बचपन को आदर्श नहीं मान रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वो जीवन का पहला कदम था। अगर ज़रा भी प्रगति हुई होती तो अभी तक आप परमानंद से टपक रहे होने चाहिए थे। हेलो? बचपन में आपके अंदर जितना आनंद था, जितनी खेल की भावना थी, उसके साथ आपने शुरुआत की थी। अब आपकी चाहे जो भी उम्र हो, आपसे परमानेंट टपक रहा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि जीवन की प्रक्रियाओं ने ही और उसके जो रिफ्लेक्शन आपके मन में है, जो कि एक मानसिक प्रक्रिया बन गई है, उसने आपके अंदर बहुत सारी जगह घेर ली है। आपकी आत्मा से भी ज़्यादा जगह उसने घेर ली है। ये जो कार वाले हॉर्न बजा रहे हैं, वो मेरे ऊपर हॉर्न बजा रहे हैं क्या? फिर मैंने अपने खुद के तरीके से शुरुआत की, क्योंकि मैं योग का अभ्यास 12 साल की उम्र से कर रहा था। मुझे लगा कि ये एक अच्छा तरीका है अपने अनुभव को लोगों के साथ बाँटने का। मेरा प्रयास ये था कि अपने परमानंद के अनुभव को मैं किसी तरह से लोगों के साथ साझा कर सकूँ। फिर मैंने पाया कि हालाँकि मैं आधे शहर को जानता था,
कई कारणों से मैं सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय था और लोग मुझे जानते थे, लेकिन जब मैंने उन्हें अपने कार्यक्रम में रजिस्टर करने की कोशिश की, जो कि 2 घंटे और 4 दिन का कार्यक्रम था, कोई भी नहीं आना चाहता था। हेलो? क्योंकि कई लोगों ने ये निष्कर्ष निकाल लिया था कि मैं खतरनाक हूँ। मैं खतरनाक क्यों हूँ? सिर्फ़ इसलिए क्योंकि एक बिज़नेस या कुछ बिज़नेस जो मैंने बनाए थे अपने खुद के हाथों से, मैंने किसी से उधार नहीं लिया था, ना ही किसी ने मुझे ये बिज़नेस बनाने के लिए कुछ दिया था। अचानक जब मैंने इन बिज़नेसेस को छोड़ दिया, लोगों को लगा कि ये बहुत खतरनाक हैं, इनका हमारे ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। कोई भी कार्यक्रम के लिए नहीं आना चाहता। फिर मुझे उन्हें मनाना पड़ा, डराना पड़ा, ताकि किस तरह वो मेरे कार्यक्रम में आएँ। सिर्फ़ 7 लोग आए। लेकिन मैं उन 7 लोगों के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि तब तक मैं एक ऐसी अवस्था में था, जहाँ मैं उनसे कुछ किसी से भी कुछ सीखना नहीं चाहता था। ना ही मुझे किसमें किसी को कुछ सिखाने की क्षमता थी। मुझे आपको ये बताना चाहिए, शायद आपको सुन के आश्चर्य हो। ये तब हुआ जब मैं अपनी प्री यूनिवर्सिटी में था कि उस समय एक वाद-विवाद चल रहा था, एक डिबेट थी। किसी अजीब से सब्जेक्ट पे वो बहस चल रही थी। फिर हर कोई उसमें हिस्सा ले रहा था। मैं इस तरह की किसी भी एकेडमिक एक्टिविटी से दूर ही रहता था। या तो स्पोर्ट में या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में, कॉलेज से बाहर की एक्टिविटी में बिल्कुल सक्रिय रहता था। तो मैं इस तरह की चीज़ों में हिस्सा नहीं लेना चाहता था। लेकिन फिर उन्होंने हमसे एक निबंध लिखने के लिए कहा, तो मैंने 2 पेज का एक निबंध लिखा। हमारे टीचर ने पढ़ा और कहा, "अरे! ये तो बहुत अच्छा है, आपको वाद-विवाद के लिए आना चाहिए।" मैंने कहा, "मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ," क्योंकि वो एक कॉम्पिटिशन था और मैंने कभी किसी कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं लिया था। मैंने स्कूल में जो कुछ खेल खेले थे, जो कुछ भी कप्स और मेडल्स भी मिले थे, कभी उन्हें लेने के लिए नहीं गया। क्योंकि मुझे हमेशा ये बात बहुत बुरी लगती थी कि मैं किसी और से बेहतर होने की कोशिश करूँ। इस चीज़ ने मुझे कभी भी प्रेरित नहीं किया। मैं तुमसे बेहतर हूँ। ये चीज़ मुझे बहुत ही भद्दी लगती थी, तो मैं कभी भी कॉम्पिटिशन में नहीं गया। अगर मैं कॉम्पिटिशन में गया तो कभी भी प्राइज़ लेने के लिए नहीं गया। तो जब उन्होंने कहा वाद-विवाद, मैंने कहा मेरी रुचि नहीं है। फिर मेरे कई सारे दोस्तों ने कहा कि तुमने जो लिखा है वो बहुत अच्छा है, तुमको आना चाहिए। तुमने जो कुछ भी लिखा है बस उसे आके कह दो। उनके काफ़ी मनाने के बाद मैंने कहा ठीक है और फिर मैं वहाँ गया। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ़ 5 मिनट के लिए बोलना है। मुझे पता है कि क्या कहना है, लेकिन तब तक मैंने कभी भी लोगों के सामने कुछ कहा नहीं था। मुझे नहीं लगा कि ये कोई समस्या है, तो मैं वहाँ जाके खड़ा हो गया। मैंने जो कुछ पहले से ही खुद ही लिखा था, वो बोलने के लिए मैं वहाँ खड़ा हो गया, लेकिन मैंने लोगों को देखा और मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया। मैं एक भी शब्द नहीं कह पाया। मैं वहाँ 3 मिनट तक खड़ा रहा और मेरे सारे दोस्त कह रहे थे, "चलो कहो, कहो, कहो।" कुछ भी नहीं। फिर 3 मिनट के बाद उन्होंने घंटी बजाई, क्योंकि अगर आप 3 मिनट नहीं बोलते तो आपका खेल खत्म। फिर मैं नीचे आ गया और मैंने कहा ये मेरे लिए नहीं है, मैं कभी भी लोगों के सामने नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ये काम ठीक से नहीं कर सकता। तो किसी भी तरह से किसी को कोई सिखाना मेरी चीज़ नहीं थी, लेकिन ये 7 लोग, मैं उनका कृतज्ञ हूँ क्योंकि वो आके मेरे सामने बैठ गए। पहले दिन 2 घंटे क्लास चली, दूसरे दिन ये 2 घंटे 5 या 6 घंटे बन गए, तीसरे दिन भी इतना ही समय लगा। जब चौथा दिन आया, उन्होंने कहा ये क्लास तो बहुत अच्छी है, हम और सुनना चाहते हैं। तो क्लास 5 दिन की हो गई, फिर 6 दिन की हो गई, फिर वो एक 6 दिन का कार्यक्रम बन गया। कोई नियंत्रण नहीं था कि क्या हो रहा है, वो चाहे जैसा बढ़ता था वैसा बढ़ रहा था। मैंने ये देखा कि 1982
83 से लेकर 1989 तक करीब 6.5-7 सालों में जब मैंने ये कार्यक्रम कंडक्ट किए हर तरह के लोगों के लिए, हर कोई बिल्कुल अचंभित था, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्हें पता था कि यहाँ कोई मूल्यवान चीज़ है, लेकिन कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि वो चीज़ क्या है। शुरू-शुरू में मैं थोड़ा मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, कम से कम मैं लोगों को अचंभित छोड़ रहा हूँ, शायद वो घर जाके सोचेंगे और बात समझ लेंगे। लेकिन फिर मैंने देखा कि लोगों को बस अचंभित करके छोड़ना पर्याप्त नहीं था। तो 87-88 में मैंने चीज़ों को संचारित करने के अपने पूरे तरीके को मैंने बदला और एक अनुभव लाने की कोशिश की, उन्हें हिला-हिला के। उन्हें इस तरीके से हिलाने की कि 80% लोग रेंग रहे होंगे। अगर मैं कुछ कहूँ तो बस वो सड़क ज़मीन पे रेंगना शुरू कर दें, ये जाने बिना कि उनके साथ क्या हो रहा है। हालाँकि ज़मीन की अच्छी सफाई हो जाती थी। आँसू, रेंगना, चिल्लाना सब कुछ हो रहा था, लेकिन मुझे पता था कि अगर हमें दुनिया तक पहुँचना है, तो हमें इसे और परिष्कृत करना होगा। तो मैंने उसे कई तरीके से सिखाने की कोशिश की। कार्यक्रम कभी भी स्टैंडर्ड नहीं हुआ करते थे। कभी-कभी ये कार्यक्रम 6 दिन के थे, कभी 12 दिन के, कभी 13 दिन के। पूरे 12 दिन मैं सिर्फ़ मोटरसाइकिल की ही बात करता था। पूरे 12 दिन मैं सिर्फ़ तितलियों की बात किया करता था या फिर सिर्फ़ फूलों की बात किया करता था। क्योंकि मैंने देखा कि आप चाहे किसी की भी बात करें, जहाँ तक कि आप अनुभव को दूसरों तक पहुँचा सकते हैं, तो बस यही चीज़ मायने रखती है। तो एक समय आया कि मैं कार्यक्रम करता था और फिर गायब हो जाता था। किसी को नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। मैं देश में कहीं पे भी निकल पड़ता था, वापस आता था, फिर से एक नया कार्यक्रम शुरू करता था। तो कई सारे लोग उन्होंने कहा, हम और ज़्यादा चाहते हैं, तो उन्होंने मुझे पकड़ के रख लिया। फिर हमने सोचा कि हम टीचर्स को ट्रेन करेंगे। एक बार जब टीचर्स ट्रेनिंग शुरू हुई, तो हमें कार्यक्रम को स्टैंडर्ड बनाना पड़ा, जो मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं अंदर जाके किसी भी चीज़ की बात करता था और फिर भी वो कार्यक्रम काम करता। लेकिन अब मुझे वही उसी चीज़ के बारे में बात करनी होती थी, जो कि मेरे लिए बहुत कठिन था। कि हर क्लास उसी चीज़ की बात करो, उसी चीज़ की बात करो। करीब 2 साल तक मैंने संघर्ष किया, एक ही चीज़ की बार-बार बात करते हुए। ये मेरे लिए बहुत कठिन था क्योंकि मैं उस तरीके से नहीं बना था। मैं कोई बहुत उस तरीके से व्यवस्थित इंसान नहीं हूँ। तो मुझे खुद को काफ़ी ठोक-पीट के ठीक करना पड़ा और व्यवस्थित करना पड़ा, ताकि मैं एक स्ट्रक्चर्ड कार्यक्रम कंडक्ट कर सकूँ, ताकि हम लोगों को ट्रेनिंग कर सकें। और फिर भी जब मैंने लोगों को टीचिंग के लिए ट्रेन करने की कोशिश की, जिसे आज हम इनर इंजीनियरिंग कहते हैं, हर कोई वो कुछ लोग जिन्हें हम ट्रेनिंग के लिए लेके आए थे, उन्होंने कहा, आपके सिवा कोई और व्यक्ति ये कार्यक्रम कंडक्ट कर ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है? उन्हें ये विश्वास दिलाने के लिए कि वो ये कर सकते हैं, इसमें काफ़ी समय लगा। लेकिन एक बार उनकी ट्रेनिंग हुई, फिर वापस लोगों ने मुझसे कहा कि सद्गुरु आपके टीचर्स आपसे भी ज़्यादा अच्छे हैं। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात। तो ये चलता रहा और फिर ऑनलाइन कार्यक्रम में परिवर्तन हुआ। मुझे पता था कि हमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना होगा। टेक्नोलॉजी के अभी वो जितनी विकसित है, उसके इतने विकसित होने से पहले भी 2006 या 2007 में, उससे काफ़ी पहले मैंने कुछ लोगों से बात की थी कि हमें इसे बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे पूरी दुनिया तक पहुँचाना होगा, वरना हम कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं ला पाएँगे। हो सकता है कि मैं गला फाड़-फाड़ के पूरी ज़िंदगी चिल्लाता रहूँ, लेकिन ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि कई महान जीवात्माएँ आई हैं। जब उन्होंने आके कुछ कहा, कुछ ही लोगों ने उनकी बात सुनी और उनके जाने के बाद दूसरे लोगों ने उनकी बातों के हज़ारों तरीकों से गलत मायने निकाले। तो यही चीज़ हमारे साथ भी होगी। तो हमें ऑनलाइन जाना ही होगा। हमें ऐसे साधन ढूँढने होंगे
मैंने ये बात कही थी, इन प्लेटफ़ॉर्म्स के आने के पहले अपने खुद के लोगों को मनाने में मुझे काफ़ी प्रयास करना पड़ा। ये समझाने के लिए कि इसे ऑनलाइन डिलीवर किया जा सकता है। इसमें करीब 8 से 10 साल लग गए। आश्रम के संस्था के अंदर के लोगों को कन्विंस करने में कि इसे ऑनलाइन लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। हर किसी को लगा कि ये संभव नहीं होगा। लेकिन आज ऑनलाइन इनर इंजीनियरिंग कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और आज शायद बात पहले से पता होगी कि ये 40 साल हो चुके हैं और अब हम इनर इंजीनियरिंग ऑनलाइन का एक काफ़ी अपग्रेडेड वर्ज़न डिलीवर कर रहे हैं। आज से इसकी शुरुआत होगी, आज इसकी लॉन्चिंग है और इसके अनुभव को बेहतर बनाने के लिए इसमें काफ़ी सारी चीज़ें शामिल की गई हैं। तो आज से ये ऑनलाइन इनर इंजीनियरिंग का नया वर्ज़न उपलब्ध होगा। What used to be two programs, 7 days of inner engineering preparatory जो अब 2 and अलग-अलग 2 कार्यक्रम होते days थे, of completion, 7 दिन का now इनर इंजीनियरिंग is ऑनलाइन merged और into 2 one दिन का एक program, कंप्लीशन कार्यक्रम, and that अब इन दोनों means को the आपस में cost जोड़ for के एक people कार्यक्रम कर दिया will गया है। come down इसका अर्थ है कि by लोगों के nearly लिए 60%. इसकी कीमत करीब 60% कम हो जाएगी। No, no, don't clap your hands. नहीं, नहीं, Because ताली the ना बजाएं, revenue for the foundation क्योंकि also comes down by 60%. ऐसा करने से आश्रम की जो कमाई होती But है वो भी we want 60% this to कम हो happen, जाएगी। so we लेकिन merged हम 2 programs इसे into one. लोगों तक You पहुंचाना just चाहते enroll हैं, for इसलिए हमने दोनों Shambhavi कार्यक्रमों को and एक inner में engineering जोड़ दिया preparation है। comes free of cost. तो आप शांभवी That's के how it लिए is. रजिस्टर करते हैं And और इनर इंजीनियरिंग की one has तैयारी to उसके साथ enroll मुफ्त में आती for a है। certain day. आपको That is एक खास probably दिन के लिए every week एनरोलमेंट of the कराना year. चाहिए, There is an जो कि initiation process called शायद Shambhavi initiation. साल के हर And you हफ्ते can में enroll for एक that, and शांभवी before कार्यक्रम that, होगा। within 15-20 आप days, उसके लिए you रजिस्टर must go through the कराइए और 7-day उसके पहले event. 15-20 दिन के And अंदर I would आपको urge all पहले of 6 you who have been through आचरण the करने होंगे programs और मैं आप सभी से before निवेदन should go करूंगा through this, कि because आप it's जिन much लोगों more आपने enhanced. पहले भी There are कार्यक्रम various किया other होगा, लेकिन aspects आप एक बार added to फिर this, इसमें हिस्सा लें क्योंकि and अब ये little पहले से more कहीं ज़्यादा entertainment बेहतर है also for you, और इसमें थोड़ा एंटरटेनमेंट भी है, so that people ताकि are more engaged. लोग ज़्यादा एंगेज्ड रहें। As we've been saying, today is जैसे the कि हम ये day of कहते रहे हैं Gramotsavam. कि It's आज ग्रामोत्सव important. था, We do ये very महत्वपूर्ण serious है things playfully. कि हम बहुत Very ही गंभीर चीज़ें खेल की भावना के साथ करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। If we don't learn to do things अगर हम playfully, चीज़ों को खेल की we भावना के will साथ करना carry नहीं life सीखते, as a great burden upon तो our हम heads. जीवन को अपने सिर के ऊपर एक भारी Especially बोझ की तरह spiritual थाम के process. रखेंगे। If you इस तौर don't पे learn to do आध्यात्मिक it क्रिया, playfully, अगर आप इसे खेल की तरह then करना नहीं you will सीखते, see तो आप people who देखेंगे claim to be spiritual, कि जो लोग दावा करते हैं कि वो आध्यात्मिक हैं, वो ऐसे बन they look जाएंगे। like goats. वो बकरियों No, की I तरह don't दिखते wish to रहेंगे। insult the goats. नहीं, मैं They're बकरियों quite का अपमान lively, नहीं as करना far as I चाहता। can see. जहाँ तक मैं देख पाता In हूँ, the वो name काफ़ी of जीवंत हैं। spirituality, लेकिन people have आध्यात्मिकता made के नाम themselves पर half-dead people. लोगों ने खुद को आधा मरा हुआ Spiritual बना people दिया should be है। doubly alive, but आध्यात्मिक they're half लोग alive and they दुगने claim they're जिंदा होने spiritual. चाहिए, लेकिन वो लोग So आधे this जिंदा is हैं very और खुद को important, आध्यात्मिक especially होने का if you दावा think करते you're हैं। doing something तो ये बहुत significant. महत्वपूर्ण है Doing कि it अगर playfully आपको लगता is है कि very आप कोई important. महत्वपूर्ण काम कर रहे Otherwise, हैं, तो उसे खेल की तरह करना बहुत the महत्वपूर्ण है। very burden वरना of carrying something so serious एक makes you इतनी dead गंभीर serious, चीज का and you're in भार the wrong उठाना order of life. First आपको डेड first सीरियस you बना should get देगा serious, and then और you आप should be जीवन dead. के उल्टे, If you become dead serious, अगर wrong आपको way of पहले doing सीरियस life. होना चाहिए फिर आप डेड होते हैं, Absolutely लेकिन wrong अगर order आप of डेड things. सीरियस हैं तो ये चीज़ों को करने का बिल्कुल उल्टा तरीका होगा। So today तो particularly आज is very important ये बहुत because महत्वपूर्ण है the world is क्योंकि facing certain situations. दुनिया There are एक many खास aspects परिस्थिति to का this. सामना कर रही है। One इसके important कई पहलू aspect हैं। is एक the महत्वपूर्ण mental पहलू health on ये the है planet. कि इस The धरती human पर mental health on the planet इंसानों का is in मानसिक serious स्वास्थ्य question. बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह का सामना When कर I रहा say है। in serious question, जब मैं कह रहा हूँ कि इस पे एक mental बहुत health बड़ा is no सवाल more, खड़ा हो or गया है, mental ill health is no more मानसिक something बीमारी that happens to अब कोई somebody ऐसी far away. चीज नहीं है जो Somebody दूर बैठे goes किसी crazy. इंसान को होता है कि No. कोई आदमी We पागल हो are जाता है। coming to a time and नहीं, हम age एक ऐसे समय where या युग में just पहुंच गए about हैं anybody can जहां lose their mental लगभग balance. हर व्यक्ति अपना अपना It is मानसिक संतुलन expected खो सकता है। that in ऐसा the अनुमान next लगाया 15 गया to है 20 कि years, अगले 15 से 20 there may सालों be में hardly any family left शायद कोई भी ऐसा without at परिवार least बचा हो one mentally जिसमें ill कम से person. कम एक If you मानसिक look रूप at से the बीमार statistics व्यक्ति ना हो। in अगर आप United आंकड़ों पर States गौर and करें Western Europe,
अमेरिका You must में understand, और don't think पश्चिम only में Americans go crazy. आप ये मत सोचिए They're कि always केवल first on अमेरिकी the लोग list. पागल होते America हैं, first. हमेशा वो लिस्ट में No, पहले होते हैं, अमेरिका फर्स्ट। they are first on the list. वो लिस्ट Everybody में else will पहले हैं, follow. लेकिन हर बाकी सब India कोई is not उनके far पीछे है। behind. भारत पीछे 20% of नहीं the है। adults 20 in United प्रतिशत States वयस्क suffer अमेरिका from में some kind of किसी न diagnosed किसी तरह की mental illness. पहचानी हुई So many मानसिक others बीमारी have से not पीड़ित been हैं। diagnosed. कई Even दूसरों की doctors cannot treat बीमारियों them. को They're पहचान नहीं की गई है। so they don't go डॉक्टर to भी उनका doctors. They're इलाज नहीं just कर सकते, तो वो their डॉक्टरों के families पास and नहीं friends जाते। will have to bear with their madness. बस उनके परिवार और 55%, दोस्तों that को is 28 million people with mental illness and no treatment. This is the reality of the 25% world. लोग जिनको मानसिक बीमारी है लेकिन उनका कोई इलाज नहीं हो Every रहा है। 20 ये दुनिया seconds, की वास्तविकता है। somebody commits suicide on this planet. Every 20 seconds. हर 20 सेकंड में कोई ना कोई व्यक्ति इस दुनिया में आत्महत्या Is there करता a है। solution for this? क्या इसका कोई समाधान है? Every 40 minutes, every 40 हर minutes, 40 a मिनट में child below 15 years 15 age साल से commits कम उम्र का suicide एक in बच्चा India. भारत में आत्महत्या करता है। When children want to kill जब themselves, बच्चे खुद को we मारना must चाहते हों, understand हमें we समझना are होगा doing something कि हम fundamentally wrong. मूलभूत रूप से कोई मतलब गलती कर रहे हैं। कैसा When है? children who जब should be बच्चे bursting with life, जिन्हें जीवन से विस्फोटित होते their रहना चाहिए, embodiment of exuberance, वो उल्लास का but जीवंत when स्वरूप they हैं, want to take their own जब life, वो अपना जीवन that लेने की means कोशिश we are करें, doing something तो इसका fundamentally मतलब है wrong. कि हम There कोई are मूलभूत various गलती कर aspects रहे to हैं। this, the इसके type of कई सारे education that we do, पहलू our हैं। social हमारा situation, जिस तरह का एजुकेशन है, and जैसी the kind of सामाजिक food we are परिस्थितियां eating, the हैं, kind जिस of तरह का atmosphere खाना we हम are living खाते in, हैं, जिस तरह के everything and वातावरण में हम रहते हैं, ये सारी physical चीजें illnesses इसमें will जुड़ come in a रही big हैं। way later. But the शारीरिक first thing बीमारियां that बड़े fails स्तर पे is the बाद में आएंगी, software. लेकिन सबसे पहले सॉफ्टवेयर Hardware फेल will होता also है। fail after some time. कुछ समय के बाद That is also हार्डवेयर भी bound to खराब हो happen. But जाएगा, before वो भी that, निश्चित रूप से we होने hope वाला to है। turn around. लेकिन उससे पहले But हमें right उम्मीद है now, कि हम इस mental परिस्थिति को illnesses are पाएंगे। going लेकिन through the अभी roof. मानसिक बीमारियां छत के Over ऊपर जा रही हैं। 147 million people on the planet are दुनिया में mentally ill. 147 मिलियन से ज्यादा लोग मानसिक रूप That's से not a बीमार small हैं। number, ये कोई छोटी but संख्या that नहीं number है, is increasing by the लेकिन ये day. संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। You know, in 1890, for the first time, they invented a 18 cigarette rolling machine. 1890 में पहली बार उन्होंने Today, सिगरेट रोल Abhi, करने की मशीन about बनाई थी। 8.5 आज sorry, 8.5 trillion 8.5 ट्रिलियन सिगरेट्स हर साल बनाई जाती हैं, 14 billion cigarettes are consumed per day. यानी कि 14 बिलियन सिगरेट हर दिन इनका सेवन किया जाता Smoking है। a cigarette, तो एक सिगरेट पीना, अल्कोहल पीना, शराब पीना या दूसरी तरह की ड्रग्स का सेवन करना, ये कोई नैतिक मुद्दा नहीं है, ये अस्तित्व का मुद्दा है। ये आपके शरीर के साथ क्या करता है और आपके मन के साथ क्या करता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। सवाल ये नहीं है कि ये सही है या गलत है। जब कुछ प्रयोग किए गए, एक साइंस मैगजीन ने अमेरिका में कुछ एक्सपेरिमेंट किए। 15 मिनट के लिए आपके पास चुनाव यह है कि या तो आप चुपचाप बैठे रहें या आप इलेक्ट्रिक शॉक लेने का, बिजली का झटका लेने का चुनाव करें। क्या आप विश्वास करेंगे? पुरुषों में से 2/3 से ज्यादा लोगों ने बिजली का झटका लेना का चुनाव किया। एक चौथाई महिलाओं ने बिजली का झटका लेने का चुनाव किया। तो बिजली का झटका लेना चुपचाप बैठने से ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब लोग अपने भीतर इस तरह के हिली हुई अवस्था में हैं, तब इनर इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इनर इंजीनियरिंग का उद्देश्य आपके रवैये को बदलना नहीं है, इसका उद्देश्य आपकी नैतिकता को बदलना नहीं है, इसका उद्देश्य कुछ ट्रिक्स को सीखना नहीं है, इसका उद्देश्य है आपकी केमिस्ट्री को बदलना, कि आपकी केमिस्ट्री ही एक आनंद भरी केमिस्ट्री बन जाए। यही इसका उद्देश्य है। ये पूरी दुनिया के साथ होना चाहिए। पिछले साल लोग कह रहे हैं कि हमारे वीडियोस के व्यूज 3.51 अरब व्यूज थे। इतने सारे वीडियोस देखे गए।
तो हम करीब दुनिया की आधी वयस्क आबादी को छू रहे हैं, लेकिन 40 साल मेरा उद्देश्य था पूरी जनसंख्या को छूना। हेलो? तो इसके एक हिस्से के रूप में मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि आप चाहे जहां कहीं भी हों, ऑनलाइन में जो आप इस सत्संग को सुन रहे हैं और जो लोग यहां हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मुझे थोड़े अच्छे परसेंटेज के साथ मरने दीजिए। हेलो? आप मेरे लिए कितने परसेंटेज बढ़ाएंगे? 100%? इसमें तो बहुत काम करना पड़ेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इंसान खुद के लिए कुछ करें। हर दिन 21 मिनट का निवेश करना अपनी खुद की खुशहाली के लिए, क्या हम लोगों को इसके लिए प्रेरित नहीं कर सकते कि वो अपनी खुद के भलाई के लिए कुछ करें? उन्हें किसी और के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, खुद के लिए। हेलो? लेकिन मैं चीज़ों को खुशी-खुशी करता हूँ, लेकिन ये एक आसान काम नहीं रहा है। लोगों को अपनी खुद की भलाई के लिए प्रेरित करना, आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि उनमें कितना प्रतिरोध है। क्योंकि अगर आप एक आनंद भरी, शानदार दुनिया में जीना चाहते हैं या कम से कम समझदारी भरी दुनिया में जीना चाहते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके आस-पास के सभी लोग समझदार और संतुलित हों। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक मेंटल इलनेस पेंडेमिक का अनुमान लगा रही है। इसका मतलब है कि आपके आसपास लगभग हर व्यक्ति थोड़ा हिला हुआ होगा। हाल ही में अमेरिका के सर्जन जनरल ने कहा कि 2 में से 1 अमेरिकी व्यक्ति अकेला महसूस कर रहा है। 2 में से 1। दूसरे व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है? अकेलापन एक शुरुआती अवस्था है और बाद में डिप्रेशन होने लगता है। अगर आप कुछ देर तक अकेलापन महसूस करते हैं, फिर धीरे से आप उदासी में डूब जाएँगे। आपको ये समझना होगा, मैं इसके बारे में बात करता रहा हूँ, अब 40 साल हो गए हैं, कि अगर आप चाहें, आप अपने दिमाग को आज ही बिल्कुल नए तरीके से रिवायर कर सकते हैं, 24 घंटे के अंदर। आप अपनी जेनेटिक सिस्टम को इस तरीके से बदल सकते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके माता-पिता कौन थे, आपकी जेनेटिक क्वालिटी क्या है। आप एक बिल्कुल ही अलग व्यक्ति बन सकते हैं कल सुबह। सभी व्हाट्सएप साइंटिस्ट्स मुझे लेकर इस बात को लेकर मेरे पीछे पड़े रहे हैं। ये व्हाट्सएप साइंटिस्ट स्वाभाविक रूप से उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन आज मॉडर्न साइंस ये बात साफ-साफ कह रहा है कि जेनेटिक्स अपने आप में एक संपूर्ण चीज़ नहीं है, वो केवल एक सलाह देते हैं। वो वास्तव में कोई भी चीज़ पूरी तरह से तय नहीं करते। वो केवल सलाह देते हैं कि ये ऐसा हो सकता है, लेकिन आप उस सलाह को अनदेखा करके कुछ और कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो जो चीज़ कर्म से जुड़ी है, उसे भी लोग इस तरह मान के चलते हैं कि कर्म यानी कि आपका जीवन ऐसा ही होगा, ये आपका भाग्य है, ये आपकी किस्मत है। नहीं, कर्म सिर्फ़ एक मंच है। आपको वो इतनी दूर तक लेकर आता है, लेकिन उसके ऊपर नाचते हैं या उसमें खुद को दफ़नाते हैं, ये आपके ऊपर है। आप अपने कर्म में को गाड़ लेते हैं और उसमें दफ़न कर लेते हैं, या आप उसे मजबूत बना के उसके ऊपर खड़े होके नृत्य करते हैं, ये आपके ऊपर है। तो आपका कर्म और आपके जेनेटिक्स आपको पीट नहीं सकते, अगर आप इसे अपने हाथों में ले लें तो। अगर आपको अपना जीवन अपने हाथों में लेना है, तो एक थोड़ी-सी मदद चाहिए। आपकी ऊर्जाओं के पैटर्न्स को बदलने में, आपकी केमिस्ट्री के पैटर्न्स को बदलने में, आपके मानसिक प्रक्रिया के पैटर्न्स को बदलने में, सिर्फ़ तभी आपको आज़ादी मिलेगी इसे बदलने की। पिछले 5 सालों में हमने हार्वर्ड मेडिकल
स्कूल बेथ इज़राइल हॉस्पिटल में सद्गुरु सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस की स्थापना की है। उन्होंने काफ़ी सारा काम किया है और अक्टूबर में वहाँ एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है। आप ज़रूर उससे जुड़ें, या तो आप लाइव उससे जुड़ें या बाद में आप उसे सुन सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक वहाँ पे मिल रहे हैं और अभी तक उन्होंने ये पाया है कि 70% की बढ़ोतरी होती है एंडोकैनिबोनॉइड्स में और बीडीएनएफ में, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोप्रोटिक 70% की बढ़ोतरी एक इंटेंस एक्सरसाइज या सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म से भी 23% ज़्यादा है। सिर्फ यहाँ बैठे-बैठे आप इस तरह की आनंद अवस्था में हो सकते हैं कि आपको इसको या उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको शराब की बोतलों के पीछे, महिलाओं या पुरुषों या दवाओं के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बैठे-बैठे आप परमानंद में हो सकते हैं। जब आप खुद के स्वभाव से आनंद में होते हैं, फिर आपका जीवन आपके हाथों में होता है। आप ये तय कर सकते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, मजबूरन कोई काम किए बिना। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है जिसकी ज़रूरत हर इंसान को है। अभी हर वो चीज़ जो लोग करते हैं, वो मजबूरन करते हैं। या तो शरीर उन्हें मजबूर कर रहा है, या उनकी भावनाएँ उन्हें मजबूर कर रही हैं, या विचार मजबूर कर रहे हैं, या सामाजिक परिस्थितियाँ मजबूर कर रही हैं। लोग आपसे पूछते हैं, क्या आपको कोई चीज़ ड्राइव कर रही है? मैं कहता हूँ, नहीं, मैं ड्राइव करता हूँ। मुझे कोई चीज़ ड्राइव नहीं करती, मैं ड्राइव करता हूँ। सद्गुरु आपको आपका मिशन ड्राइव कर रहा है। नहीं, मुझे मेरा मिशन ड्राइव नहीं कर रहा, मैं अपने मिशन को ड्राइव करता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम में से हर व्यक्ति ड्राइव करके अपने जीवन को वहाँ ले जाए जहाँ हम चाहते हैं। कोई और चीज़ हमें ड्राइव ना करे। अगर कोई और चीज़ हमें ड्राइव कर रही है, तो हमें आपको ह्यूमन बीइंग नहीं कहना चाहिए, हमको आपको ह्यूमन क्रीचर कहना चाहिए। अगर आप एक ह्यूमन बीइंग बनना चाहते हैं, तो आपको इस जीवन को ड्राइव करना चाहिए, वरना ये बीइंग नहीं है, ये क्रीचर है। एक क्रीचर को कई सारी चीज़ें ड्राइव करती हैं, हार्मोन्स, मजबूरियाँ, कंपल्शंस। एक इंसान के पास भी ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप इंसान तभी हैं, जब आप इन चीज़ों को वैसे ड्राइव जैसे आप चाहते हैं, वरना कोई बीइंग नहीं है। बीइंग यानी आपके पास चुनाव है कि आप कैसे होना चाहते हैं, आप जैसे चाहे वैसे हो सकते हैं। तो ये इनर इंजीनियरिंग, इसने अब एक नया मोड़ लिया है, इसे एक नए तरीके से पेश किया जा रहा है। क्योंकि मुझे आपको बताना होगा कि ख़ास तौर पर पश्चिमी देशों में उन्हें ईशा से डर लगता है। क्यों? क्या 17 मिलियन से ज़्यादा वॉलंटियर हैं? बड़े से चर्च की तरह है। नहीं, नहीं, ये कोई चर्च नहीं है, ये बस कुछ झक्की लोग हैं, जो साथ आते हैं और एक ही तरह की चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। नहीं, नहीं, ये बहुत बड़ी संस्था है, हमें नहीं चाहिए। सद्गुरु कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये संस्था मेरे अंदर भी किसी भी तरह की संस्था को लेके काफ़ी सारा प्रतिरोध था। इसीलिए जब लोगों ने कहा कि सद्गुरु कोई आश्रम बनाइए, कोई आश्रम बनाइए, मैंने कहा नहीं, नहीं, मैं उसे पोस्टपोन करता रहा। जब कोई चारा नहीं बचा, तभी मैंने संस्था की स्थापना की। क्योंकि मुझे लगा कि संस्था यानी भ्रष्टाचार। अकेले मुझे जो करना है मैं करूँगा, इसे बिल्कुल साफ रखूँगा, कभी कुछ होने की अनुमति नहीं दूँगा। तो मैंने उनके डरों को समझा और इसके एक हिस्से के रूप में हम अपनी सारी ब्रांडिंग को बदल रहे हैं। हमारी जितनी भी आध्यात्मिक भेंटें हैं, उनकी ब्रांडिंग सिर्फ सद्गुरु होगी। हम जितने भी बिज़नेस करते हैं, ईशा बिज़नेस, ईशा आउटरीच, वो सब ईशा के अंदर आएँगे। जितनी भी आध्यात्मिक भेंटें होती हैं, वो मेरे साथ होंगी या मेरे नाम से ब्रांडेड होंगी। क्योंकि किसी को भी कोई भी व्यक्ति एक आध्यात्मिक प्रक्रिया किसी संस्था के साथ नहीं करना चाहते। वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ करना चाहते हैं जिस पे उनका विश्वास हो। तो आज के बाद इसे कहा जाएगा
इन 7 स्टेप्स ट्रांसफॉर्म योर लाइफ विद सद्गुरु। सद्गुरु के साथ 7 चरणों में अपने जीवन को रूपांतरित करें। 7 चरण, जैसा कि आप जानते हैं कि 7, चूंकि अभी L1, क्या आप L1 जानते हैं? मैं आपकी वर्टिब्रे की बात नहीं कर रहा। क्या आपको L1 पता है? नहीं पता? आदित्य L1 के बारे में सुना है आपने? अरे, तो भारतीय परंपरा में जो सूर्य देव हैं, उनका एक रथ है जिसके 7 घोड़े हैं। हजारों साल पहले प्रतीक के रूप में ये बात कही गई थी कि प्रकाश में 7 अलग-अलग रंग हैं। हजारों साल पहले ये बात कही गई थी, जब किसी को ये नहीं पता था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो 7 घोड़े सूर्य देव का रथ चलाते हैं। म्यूजिक में 7 नोट होते हैं, शरीर में 7 चक्र होते हैं, 7 दिया, 7 लोक और सप्तऋषि। बात केवल भारत की ही नहीं है। अगर आप दूसरी संस्कृतियों को देखें, हर जगह उन्होंने इस बात को जाना है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं। जूइश लोग कहते हैं कि भगवान 6 दिन काम करते हैं और 7वें दिन आराम करते हैं, जिसे सबात का दिन माना जाता है, जो कि शनिवार होता है। फिर से 7 दिन। अगर हम धरती और चंद्रमा को छोड़ दें, तो 7 और दूसरे ऐसे ग्रह हैं जिनका हमारे ऊपर प्रभाव होता है। ग्रह का अर्थ होता है एक प्रभाव। किसी चीज आपके ऊपर एक प्रभाव होता है, या जब आप किसी चीज को जान लेते हैं तो उसे कहते हैं ग्रहण करना। ग्रहण करना यानी किसी चीज को जान लेना, उसका अनुभव करना। तो कोई ऐसी चीज जिसका आपके ऊपर प्रभाव है, उसे ग्रह कहते हैं। तो हमने इन ग्रहों के 9 आयामों को पहचाना जिनका हमारे ऊपर एक गहरा प्रभाव है। तो इन 9 में अगर हम धरती और चंद्रमा को छोड़ दें, क्योंकि वो हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा हैं, बचे 7। तो 7 ग्रह, इनका हमारे ऊपर प्रभाव है। क्रिश्चियन फिलॉसफी ने भी यही बात कही, और 6 दिन वो कहते हैं भगवान काम करते हैं, लेकिन उन्होंने अगले दिन छुट्टी ली, जूइश लोगों से अलग, क्योंकि आपको कुछ अलग होना चाहिए। आप भगवान उनके भाव से अलग होना चाहिए। तो क्रिश्चियन लोगों ने कहा कि उनके भगवान संडे को आराम करते हैं। इस्लामी लोगों ने भी यही बात कही, लेकिन वो भी दिन बदलना चाहते थे। तो वो मंडे नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि भारतीय लोग मंडे लेते हैं, तो उन्होंने शुक्रवार लिया। लेकिन वही चीज, 7 दिन 7 पहलू। तो दुनिया के जो महान धर्म हैं, उसमें कई 7 हैं, 7 अलग तरह के कुराने हैं। मूलभूत अमेरिकी 7, उसमें जो मूल दिशाएं हैं वो 7 हैं। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ऊपर नीचे और भीतर। 7 न्यूमेरिकल सिस्टम है रोमन के, और ऐसी सारी चीजें हैं जो 7 की संख्या में होती हैं। 7 चरणों में अपने जीवन को रूपांतरित करें सद्गुरु के साथ। इनर इंजीनियरिंग। तो इस नई लॉन्च का क्या अर्थ है? मैं चाहता हूं कि आप सभी, जिन लोगों ने पहले ही कार्यक्रम में हिस्सा ले चुके हैं, ऐसी कई व्यवस्थाएं हैं। अगर आपने कार्यक्रम किया हुआ है, कैसे आप इसमें फिर से हिस्सा ले सकते हैं। कुछ छोटे-छोटे सैंपल्स भी हैं, ताकि आपने देखकर इसका कैसे आपको ये पता चले कि नए लोगों को आपसे बेहतर कार्यक्रम में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। किसी ने कहा, जो अंत तक रुकते हैं वो पहले पहुंचते हैं। आपको पता है, किसी ने कहा था, जो किसी लाइन में अंत में खड़े होते हैं
वो पहले होते हैं, जो पहले खड़े होते हैं वो अंत में जाते हैं। आपको पता है? नहीं पता? कोई बात नहीं। आपको ये चीज़ें पता होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग देर से आते हैं उन्हें बेहतर चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि चीज़ें समय के साथ-साथ बेहतर होती जाती हैं। कुछ भी बेहतर नहीं हुआ है। मेकअप बेहतर हुआ है, लेकिन मूलभूत चीज़ अभी भी वैसी ही है। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए थोड़े मेकअप की ज़रूरत है, तो मैं कहूँगा कि आपको फिर से नए कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहिए। कई रूपों में वो आपको भेंट किया जाएगा और सबसे बढ़कर ये इनर इंजीनियरिंग, ये एक पैकेज के रूप में आ रहा है, यानी कि ये वास्तव में शांभवी महामुद्रा है जो महत्वपूर्ण चीज़ है और उसके पहले 6 दिन की तैयारी है। अब ये इनर इंजीनियरिंग क्लास पार्ट के रूप में आएगा, कृपया इसका उपयोग करें और देखें कि ये पूरी दुनिया तक पहुँचे। आप में से हर एक व्यक्ति, आप में से जो लोग यहाँ हैं और जो लोग ऑनलाइन आप ये सत्संग देख रहे हैं, आप चाहे जहाँ भी हों, मैं आपसे किसी संख्या का वचन नहीं लूँगा। आप अपने मन में निर्धारित करें। आज 23 सितंबर है। 23 सितंबर 2024 के पहले आप कितने लोगों को इनर इंजीनियरिंग कार्यक्रम भेंट करेंगे? आप अपनी खुद की संख्या तय कीजिए। मैं आपको संख्या नहीं बताऊँगा। आप खुद ही संख्या चुनिए। वो संख्या शून्य ना हो। हाँ, सद्गुरु, मैं चाहता हूँ कि मेरे चाचा जी करें, लेकिन मेरे चाचा जी चाहते हो सकता है कि चाचा जी चाहें कि आप उनके लिए पैसे दें। ठीक है, दे दीजिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा भतीजा करे। अगर आपका भतीजा जो 22 साल का है, वो अगर हिस्सा नहीं लेता, तो आप 10 दूसरे लड़कों को ढूँढिए जो 22 साल के हैं और उनको कार्यक्रम करवाइए और वो आपसे, आपके भतीजे से ज़्यादा करीब हो जाएँगे। आप जो संख्या चुनना चाहते हैं, चुनिए। मैं आपको नहीं बताऊँगा और कोई संख्या चुनिए और 2024 तक मैं आश्चर्यचकित हो जाना चाहिए इन नई संख्याओं को देखकर, क्योंकि ये नई संख्या ज़रूरी है। सितंबर 2024 में कॉन्शियस प्लैनेट के नई मुहिम को शुरू करने के लिए ये संख्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, हेलो? चाहे आपको ये बात समझ आए या ना आए, शायद आपको ये बात समझ ना आए। देखिए, अगर आप ऐसे होते, हर दिन आप खुद को देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका समय बीतता जा रहा है। अगर आपने हर समय मेकअप लगा के रखा है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका समय बीत रहा है। एक बार ऐसा हुआ, मिस मिटिल्डा, आप जानते हैं? नहीं? मिस मिटिल्डा सड़क पे चल रही थीं। उनकी उम्र 53 साल की थी। लेकिन एक बस ने उन्हें ठोकर लगा दी और वो पूरी तरह से घायल हो गईं। वो उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। वो लगभग बेहोश थीं। डॉक्टर उम्मीद छोड़ रहे थे। उन्होंने प्रार्थना की, हे भगवान, मैंने अभी तक शादी भी नहीं की है। मैं अपने कैरियर में व्यस्त रही हूँ और आप मुझे अभी मारना चाहते हैं? नहीं, मुझे अभी मत लीजिए। मुझे कुछ साल और दे दीजिए। भगवान प्रकट हुए हॉस्पिटल के कमरे में ही। वो एक ऐसी जगह है जहाँ मैंने सुना है कि भगवान अक्सर प्रकट होते हैं और भगवान ने कहा, मिटिल्डा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 100 साल देता हूँ। और जादुई तरीके से अगले 3-4 हफ्तों में मिटिल्डा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई और उसे एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस अमाउंट मिला। फिर उसने तय किया कि वो खुद को बिल्कुल अलग तरीके से बनाएँगी। उन्होंने अपने होंठों की सर्जरी कराई, अपने शरीर के हर अंग की सर्जरी कराई, अपने बाल बदले। 3 महीने हॉस्पिटल में रुकी रहीं। उन्होंने अपना रूप पूरी तरह से बदलवा लिया ऑपरेशन करवा-करवा के, बिल्कुल नई।
वो सड़क से बाहर निकलीं, वो अपने नए डिज़ाइनर कपड़े पहन के सड़क पार कर रही थीं, एक बस ने आके उन्हें ठोकर मार दी और वो मर गईं। फिर वो स्वर्ग गईं। वहाँ उन्होंने जाके कहा कि भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने मुझसे वादा किया था कि मेरे पास 100 साल का जीवन और है, और मैंने अपनी सर्जरी करा के अपना पूरा रूप बदलवा लिया। मैं हॉस्पिटल के बाहर निकली और इस बस ने मुझे ठोकर मार दी और मैं मर गई। भगवान ने उन्हें देखा और कहा, मिटिल्डा, अरे तुम, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। तो आप जैसे हैं वैसे रहने में बहुत सारा फ़ायदा है, क्योंकि ये आपको लगातार बताता रहता है कि आपका समय बीत रहा है। तो हर दिन अपना मेकअप लगाए बिना बस खुद को आईने में देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि आपका समय बीत रहा है, क्योंकि हम सभी का समय बीत रहा है। क्योंकि हम में से कोई भी समय को रोक नहीं सकता। हाँ, आपके पास एक स्टॉप वॉच है, लेकिन आप समय को नहीं रोक सकते, ना ही आप उसे रिवाइंड कर सकते हैं। ना ही आप बीते हुए कल को कल फिर वापस आने के लिए कह सकते हैं। सृष्टि में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। समय बस बीतता जाता है, बीतता जाता है, बीतता जाता है, सिर्फ आगे, पीछे नहीं जाता। तो हम सभी का समय बीत रहा है। तो आइए देखें कि हम सबसे बेहतर क्या कर सकते हैं एक ज़्यादा आनंदित दुनिया बनाने के लिए, एक ज़्यादा समझदारी भरी दुनिया बनाने के लिए। क्योंकि समझदारी और मानसिक संतुलन एक बहुत गंभीर समस्या बन रही है। शायद आपको ये बात समझ नहीं आई कि सेव सॉइल मूवमेंट और मानसिक स्वास्थ्य के बीच में क्या समय संबंध है। आप में से हर किसी को खुद को इस चीज़ के बारे में एजुकेट करना चाहिए। सद्गुरु सेंटर फॉर कॉन्शियस प्लैनेट की वेबसाइट पे जाके आप देखिए, बहुत सारी रिसर्च है और काफ़ी सारी चीज़ें दूसरों ने भी लिख रखी हैं। काफ़ी एविडेंसेस मौजूद हैं कि आप जो खाना खाते हैं उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी, जो कि मिट्टी में ऑर्गेनिक कंटेंट की कमी के बीच होती है, इसका मानसिक असंतुलन से बिल्कुल सीधा संबंध है। इस बारे में अब कोई संदेह नहीं बचा। पर्याप्त साइंटिफिक स्टडीज की गई हैं। तो मिट्टी को पुनर्जीवित करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में, और ये तय करने में कि हमारे आसपास का हर व्यक्ति भी स्वस्थ है। क्योंकि जिस तरीके से शारीरिक बीमारियां दूसरे लोगों को फैल सकती हैं, मानसिक बीमारी भी, अगर आपके आसपास बैठे 2 लोग डिप्रेस हैं तो धीरे-धीरे हो सकता है आप भी डिप्रेस हो जाएं। ऐसी काफ़ी स्टडीज़ की गई हैं जो बताती हैं कि अगर आप अपने जीवन में उत्साह की कमी पैदा करते हैं, डिप्रेशन या इस तरह की चीज़ें लाते हैं, तो ये अगली पीढ़ी में भी होने लगता है। ये केवल आजू-बाजू के लोगों में नहीं, अगली पीढ़ियों में भी होने लगेगा। अगर आपके मन में अपने बच्चों के लिए ज़रा भी परवाह है, दुनिया की भावी पीढ़ियों के लिए परवाह है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप मानसिक रूप से स्थिर रहें, समझदार रहें, उल्लासित रहें और परमानंद में रहें। अगर आप राज़ी हैं, तो इसे संभव बनाने के लिए हमारे पास सारे साधन मौजूद हैं, लेकिन आपको इन साधनों को बाकी की दुनिया तक भी लेकर जाना है। आप देख सकते हैं कि मेरी उम्र बढ़ रही है, लेकिन मैं थका हुआ नहीं हूँ। उम्र बढ़ गई है, तो आप सभी लोग मुझे लगा कि अचानक हर किसी ने मानना शुरू कर दिया है कि वो बूढ़े हैं। अगर आप ज़िंदा हैं, तो आप युवा हैं। अगर आपकी उम्र बहुत बढ़ गई है, तो आपको मर जाना चाहिए। अगर आप ज़िंदा हैं, तो आप अभी भी इतने युवा हैं कि आप कुछ कर सकते हैं। तो आइए इसे संभव बनाएँ, क्योंकि ये जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगर अभी हम इसका ख़्याल नहीं रखते, तो अभी जो पीढ़ी है और जो आने वाली पीढ़ी है, वो बहुत दुःख पाएगी। मानसिक बीमारियाँ कोई मज़ाक नहीं होतीं। मानसिक बीमारी कोई हँसने की बात नहीं होती। मानसिक बीमारी बहुत गहरी सफनी होती है। हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा कभी भी किसी के भी साथ हो।
आप कभी भी ये ना कहें कि मैं पागल हो जाऊँगा, क्योंकि हो सकता है कि आप हो जाएँ। तो कई सारी दूसरी चीज़ें हैं, बहुत सारी स्टडीज़ हैं और जो आंकड़े हैं, ये बता रही हैं कि कैसे मानसिक बीमारी पूरी दुनिया में फैल रही हैं और सरकारें, लीगल एंटिटीज़ अब ये बता रही हैं कि हम मानसिक बीमारियों को नहीं सँभाल सकते भांग के बिना, इस तरह की चीज़ों के बिना। कई देशों में इन चीज़ों को लीगल बनाया रहा है क्योंकि लोगों की वो मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप मानसिक रूप से हिले हुए हैं तो सबसे बेहतर है कि आप सो जाएँ। अगर आप सो जाते हैं, दिन में 4, 6 या 8 घंटे के बजाय अगर आप 16 घंटे सोते हैं, तो हो सकता है आप दिखावा करें कि 8 घंटे के लिए आप बड़े समझदार हैं और फिर सोने के लिए चले जाएँ। ये कोई समाधान नहीं है। अभी लगभग वो चीज़ जो इंसान कर रहे हैं, वो आम तौर पर मूलभूत समस्या से ध्यान भटकाने के लिए है। कभी भी ध्यान भटकाने की व्यवस्था को समाधान ना समझें। अपने खुद के जीवन में आप देखिए, आप कब तक अपना ध्यान भटकाते रहते हैं। अगर आपको पता नहीं क्या करना है, तो फ़ोन उठा लीजिए। 3 दिन फ़ोन नीचे रख दीजिए, टीवी बंद कर दीजिए, कोई किताब या न्यूज़पेपर मत पढ़िए, किसी से बात मत कीजिए, बस चुपचाप अलर्ट बैठिए। आप देखेंगे कि आपकी मानसिक अवस्था कैसी है और इसे बदलने के लिए हम आपके दिमाग को पूरी तरह से री-इंजीनियर कर सकते हैं कुछ ही दिनों के अंदर। 3 दिन के लिए अगर आप कोई सेंसरी इनपुट नहीं लेते, अगर आप कुछ बोलते नहीं, कुछ देखते नहीं, 3 दिन के लिए पूरी तरह से सतर्क होके अगर आप बैठें, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी आपके दिमाग में इतने ज़बरदस्त तरीके से बदलती है, ये वेल एस्टैब्लिश्ड है, अच्छे से डॉक्यूमेंटेड है, ये इतने नाटकीय तरीके से बदलती है कि 24 से 48 घंटों में आप बिल्कुल नए इंसान बन सकते हैं, इतना ज़्यादा संभव है। आश्रम में और कई दूसरी चीज़ें जो हम बैंगलोर में बना रहे हैं और योगिक सिटी जो हम अमेरिका में बना रहे हैं और जो दिल्ली में नया केंद्र आने वाला है, ये सारी चीज़ें और भी कई सारी चीज़ें हो रही हैं। इनका उद्देश्य है इंसानी खुशहाली साथ प्रदान करना और सही वातावरण प्रदान करना, जहां लोग अपनी खुद की खुशहाली के लिए काम कर सकें। कृपया इसे संभव बनाएं। तो आज उस दिन के बाद 40 दिन बीत गए। आज हम यहाँ हैं और फिर से इनर इंजीनियरिंग ऑनलाइन को रीलॉन्च कर रहे हैं एक नए फॉर्मेट में। 7 चरणों में अपने जीवन को रूपांतरित करें सद्गुरु के साथ। आइए इसे संभव बनाएं। People have concluded that stress is a part of their life. Stress is not a part of your life, it is just that you do not know how to manage your body, you do not know how to manage your mind, you do not know how to manage your emotions. लोगों ने निष्कर्ष निकाल रखा है कि तनाव उनके जीवन का एक हिस्सा है। तनाव आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। बात बस इतनी है कि आपको अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी भावनाओं या जीवन ऊर्जाओं को संभालना नहीं आता। आपको पता है कि आपको अगर दुनिया में कुछ करना है तो आपको उसकी इंजीनियरिंग करनी होगी। यही चीज़ आप पर भी लागू होती है। अब मैं बात कर रहा हूँ आपके भीतर सही तरह की केमिस्ट्री बनाने की, जिससे कि शांति और आनंद में होना आपके लिए स्वाभाविक ही होगा। ये 7 चरणों का एक कार्यक्रम है जिसने करोड़ों जीवन रूपांतरित किए हैं। ये एक उपकरण है, ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये कोई विचारधारा नहीं है, ये कोई नया धर्म नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी है। We now have a musical offering by Srimati Kaushiki Chakrabarti and Sri Sandeep Narayan. Kaushiki Chakrabarti, a child prodigy who could reproduce Hindustani classical work patterns at the age of 2, began her training under her mother.
श्रीमती कौशिकी चक्रवर्ती और श्री संदीप नारायण की एक संगीतीय प्रस्तुति है। कौशिकी चक्रवर्ती एक विलक्षण प्रतिभा की धनी कलाकार हैं, जो 2 साल की उम्र से ही हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन पैटर्न को पुनः पेश कर सकती थीं। कौशिकी ने अपनी मां श्रीमती चंदना चक्रवर्ती के तहत अपना प्रशिक्षण बहुत ही कम उम्र में शुरू किया। इसके बाद उन्होंने महान गुरु पंडित ज्ञान प्रकाश घोष की गंडाबंद शिष्या बनने का सौभाग्य मिला। इसके बाद वे अपने पिता स्वर उस्ताद पंडित अजय चक्रवर्ती की शिष्या बनी, जिनसे वे आज भी सीखती हैं। बाद में उन्होंने पद्म भूषण पंडित एम बालामुरली कृष्णन से कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में भी तालीम प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। ख्याल गायिका के रूप में उनकी प्रतिभा सर्वविदित है, लेकिन वे ठुमरी, दादरा, कजरी, चैती, भजन आदि जैसे अन्य हल्के शास्त्रीय शैलियों को गाने में भी माहिर हैं। वे जादू भट्ट पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिए जाने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, 2000 में एम.फिल के लिए बीबीसी अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, जिमा अवार्ड और एल्बम यात्रा 2 के लिए मिर्ची म्यूजिक अवार्ड की प्राप्तकर्ता भी हैं। संदीप नारायण कर्नाटक संगीत के प्रसिद्ध संगीतकार हैं। अपनी सुरीली आवाज, जटिल विस्तार और रचनाओं की भावपूर्ण प्रस्तुतियों के लिए जाने वाले संदीप एक संगीत शिक्षक भी हैं और उन्होंने दुनिया भर के कई छात्रों को कर्नाटक संगीत की कला में प्रशिक्षित किया है। सन 2019 में भारत सरकार की संगीत नाटक अकादमी ने संदीप को प्रतिष्ठित उपाधि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया। वे कार्तिक फाइन आर्ट्स चेन्नई से ईसाई पेरोली और षण्मुखानंद संगीत सभा मुंबई से षण्मुख संगीत शिरोमणि उपाधियों के भी प्राप्तकर्ता हैं। संदीप पारंपरिक भारतीय और दुनिया भर के दर्शकों के बीच एक सांस्कृतिक राजदूत में काम करने का प्रयास करते हैं। आज इस प्रस्तुति में उनका साथ दे रहे हैं बांसुरी पर श्री पारसनाथ, तबले पर श्री यशवंत वैष्णव, मृदंगम पर श्री अर्जुन गणेश, वायलिन पर श्री मदन मोहन, हारमोनियम पर श्री मिलिंद कुलकर्णी और साउंड्स ऑफ ईशा। आज रात श्रीमती कौशिकी चक्रवर्ती और श्री संदीप नारायण हमें भारतीय शास्त्रीय संगीत की गहराइयों में ले जाएंगे। कर्नाटिक और हिंदुस्तानी शैलियों के अनूठे सुंदर पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए और पूरे भारत में प्रचलित कला की समृद्ध परंपरा को प्रदर्शित करते हुए कौशिकी जी और संदीप जी अपनी प्रस्तुति से उत्तर और दक्षिण को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। It's great some of you are equipped with umbrellas, but we didn't expect this and we've been looking forward to this concert for some time now. हमें इस बारिश की उम्मीद नहीं थी और हमें इस कॉन्सर्ट की काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। अगर ऐसा होता है कि बारिश ज़्यादा तेज़ हो जाती है, तो क्या हम धीरे से आदियोगी आलय में दोबारा इकट्ठे हो सकते हैं 30 मिनट के अंदर? 30 मिनट के अंदर हमें वापस आदियोगी आलय में मिलना होगा। अगर बारिश आती है तो अभी हम कॉन्सर्ट चालू कर रहे हैं।
30 minutes, within 30 minutes, everybody assemble in Adiyogi Alayam. Let's get there quick. Same. Oh no. It's okay. आज की इस सत्संग के लिए अब बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कारम।